Lukman sir, we are good to start. Yes, just a minute, please. I'm just starting the PPT and then we will carry on. By the way, let me introduce myself to all the audience Sure, before sir. I share it. I'm Luqman Hussaini, Dr. Sayyid Ali Luqman Hussaini, Principal and Director at Gyanam Junior College. Um, I, I I am a psychologist also and a PhD in management. I do counseling for people on people those who are suffering from depression or people those who have issues in their relationship or any other psychological issues. So we thought we would organize this program called as Be Positive to Remain COVID Negative, and this is the third in the series of sessions. So may I just know how many of you attended the earlier two? पिछले दो sessions attend करने वाले आप में से कोई हैं यहाँ पर? Can you please raise your hand if you are one? All right, only one person it seems has attended the previous sessions too. Okay, because I have to decide where to start from. अगर बहुत सारे लोग नहीं सुने हैं तो जो है there is no point in continuing from where we stopped. All right, so two people, just give me 1 minute time. I'm just back to start with this. Some people are expected to join soon. Assalamu alaikum. All right. Please, can you please enable me to share the screen? Afroz bhai, you have to make me co-host to share the screen. Sure, sir, doing that. Please. So for people those who were not there in the earlier session, जो पिछले sessions में नहीं थे उनके लिए थोड़ा सा मैं background दे देता हूँ. Unfortunately हम एक ऐसे वक्त से गुजर रहे हैं, pandemic, lockdown, corona virus and you name the thing, इस तरह के जो है difficulties से हम जो है गुजर रहे हैं. So and as a result we are seeing that many people are, because they are losing jobs, so many people have lost their sources of income and so many people have lost their loved ones, अपने चहितों को जो है खो चुके हैं. And people have left their places जहाँ पर वो रहते थे वहाँ से migrate करके they have gone to their hometown. So there are so many difficulties through which people are going through. And ऐसा भी देखा गया है कि लोग अच्छे भले थे और कोविड पॉजिटिव हो गए और within 1 week 10 days you come to know that the person is no more. तो ये भी जो है हमको सुनने में मिला है. तो एक पता नहीं, देखिए most of the people I should say, including doctors, most of the people are very clueless about what kind of disease this is और ये किस तरह से behave कर रही, how people are getting. तो इसकी वजह से because this confusion may also cause a lot of stress, लोगों के अंदर काफी स्ट्रेस को पैदा करता है confusion, और उसकी वजह से जो है जो सेहतमंद इंसान है वो भी बीमार हो सकता है. तो वी थॉट CGC हम जो है करियर गाइडेंस तो करते ही हैं. We have been doing that for more than 10 years now. So we thought let us have a session which will be useful for people to be positive during these difficult times of pandemic and lockdowns, etc. I understand most of you are not getting jobs. You have been applying for jobs so much and you are not able to get it. XYZ reasons हैं, कुछ personal reasons होते हैं हमारे. We are not fully prepared for the selection process and then we fail the interviews. और our foundation is very poor. हमारी schooling और college में हम education properly नहीं लिए और later on we realized how important education is. ऐसा बहुत सारे जो है लोग face करते हैं issues को. And these problems are increased, aggravated because of the current situation जो कि lockdown का है. जो कंपनीज चल रहे हैं they also are not in a situation to run properly and hire people. So that's very apt time. ये काफी अच्छा टाइम है हमको ये डिस्कस करने के लिए कि पॉजिटिव कैसे रहा जाए, हाउ टू स्टे पॉजिटिव. एंड उसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है, फायदा ये है कि आप पॉजिटिव अगर रहेंगे तो नेगेटिव थिंग्स विल नॉट अफेक्ट यू. एंड डिसीज, ये जो डिसीज है कोरोना वायरस वाली, ये भी जो है इंशाल्लाह आपको अफेक्ट नहीं करेगी.
I hope my screen is visible to the audience. Yes, sir. राइट, चलिए। तो हम पिछले 2 सेशंस में हम 2 चीज जो है डिस्कस किए हैं। इफ वी डेवलप ए पॉजिटिव एटीट्यूड, अगर हम पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप कर लें तो हमारी लाइफ में जो है काफी क्या कहते हैं, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन वगैरह वगैरह, ये तमाम चीजें जो है हमारी लाइफ में आ जाएंगी। लेकिन सबसे बड़ा क्वेश्चन या सबसे बड़ी चैलेंज ये है कि हम पॉजिटिविटी कैसे लेकर आए अपनी लाइफ में, यानी कि हाउ टू बी पॉजिटिव इन ऑर्डर टू bring in happiness and bring in satisfaction in our life. Whereas the atmosphere, हम जिस एटमॉस्फेयर में, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं, वो सोसाइटी में जो है बहुत सारी नेगेटिविटी स्प्रेड हुई हुई है। पीपल आर यूजुअली अंडर डिप्रेस मोड, या जो है गुस्से में रहते हैं, एंगर में रहते हैं। people are not satisfied, people are unhappy, people have so many issues, people have so many complaints to make. तो हमारा जिनसे सामना होता, people whom we meet with, usually they are having a lot of negativity in them, and situation atmosphere भी ऐसे ही है। न्यूज़पेपर आप खोल के देखिए, there is a lot of negativity। तो अब ये सिचुएशन से अगर हमको बच के निकलना है तो हमें जो है पॉजिटिविटी चाहिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ टू गेट दैट पॉजिटिविटी, कैसे लेकर आए। बोल देना बहुत आसान है, आई कैन जस्ट से दैट 101 टाइम्स, बी पॉजिटिव बोल सकता हूं मैं। लेकिन सवाल ये है कि लाऊं कैसा, हाउ ए पर्सन शुड बिकम पॉजिटिव, ये जो है बड़ा क्वेश्चन है। Sorry to interrupt. Are you sharing your screen? I can see only WhatsApp. Just a minute, I thought that the PPT was online. One moment please। अभी is the PPT on now? Is the PPT on? अभी आपको पावर पॉइंट नजर आ रहा है? Yeah. All right. तो चलिए यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। तो we have discussed in the previous 2 sessions, we have discussed about how to develop positive attitude। उसके लिए 2 components हम टच कर चुके हैं ऑलरेडी। अगर हमें पॉजिटिव एटीट्यूड डेवलप करना है तो सबसे पहली चीज जो हमें अपने अंदर लानी है वो है पॉजिटिव थिंकिंग। वी हैव टू मेक अवर थिंकिंग पॉजिटिव। अगर हम अपनी सोच को पॉजिटिव बना लें तो आगे आने वाली जो चीजें हैं वो आसानी से जो है हम अचीव कर सकते हैं, दैट लाइक पॉजिटिव कम्युनिकेशन, पॉजिटिव एक्शन वगैरह वगैरह। तो हम ये डिस्कस किए थे फर्स्ट सेशन में कि सोच को किस तरह से पॉजिटिव बनाया जाए। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि सोच जो हमारी होती है, थिंकिंग 2 किस्म की होती है। एक वॉलंटरी, जो खुद ही से अपनी, यानी सोच जो खुद से आती जाती है। अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं तो देयर आर न्यूमरस थिंग्स विच यू आर थिंकिंग ऑलरेडी, ठीक है, जो आपके कंट्रोल में नहीं है, आपको हर किस्म के ख्याल आता रहे। एक ये थिंकिंग है। दूसरी कॉन्शियस थिंकिंग, जो आप जानबूझकर सोचते हैं। लाइक इफ आई आस्क यू अ क्वेश्चन लाइक हाउ मेनी टाइम्स यू हैव स्लेप्ट ड्यूरिंग द डे इन द लास्ट 1 वीक, अगर मैं पूछ लूं तो आई एम श्योर सम ऑफ यू हैव स्टार्टेड थिंकिंग ऑलरेडी। याद करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग, यू आर ट्राइंग टू रिकलेक्ट। और इफ आई आस्क यू टू थिंक एंड टेल मी हाउ टू डू समथिंग, देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग। तो ये कॉन्शियस एफर्ट है। पहली वाली जो थॉट है ना, थिंकिंग, वो ऑटोमेटिक है, नेचुरल है, वॉलंटरी है, खुद ही से आती है। तो हमारा जो पहले सबसे पहला एफर्ट हमें लगाना है वो ये है कि वो जो थॉट खुद से आ रहे हैं वो अगर पॉजिटिव हो तो हमें उसे कैरी ऑन करना है। अगर वो नेगेटिव थॉट्स हैं तो हमें उसे इमीडिएटली वहीं पर स्टॉप कर देना है। वी शुड नॉट एंटरटेन दोज थॉट्स। Now the question is, how do you differentiate between what is a positive thought and what is a negative thought? ठीक है, any thought which is making you feel happy, making you feel good, and it is having a positive takeaway for yourself and for anybody around you, ये एक positive thought है। और ऐसी थॉट जिससे आप अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, आप बुरा फील कर रहे हैं और नुकसानदेह है आपके लिए और लोगों के लिए भी नुकसानदेह है, तो दैट काइंड ऑफ थॉट इज अ नेगेटिव थॉट। तो आपको पॉजिटिव थॉट अगर आ रही है, आपको कैरी ऑन विद दैट। नेगेटिव थॉट आ रही है तो यू हैव टू स्टॉप इट। सेकेंडली, हमारा परसेप्शन जो होता है ना, व्यू पॉइंट, नजरिया, वी हैव परसेप्शन अबाउट एवरीथिंग। लाइक वी हैव अ परसेप्शन अबाउट द पुलिस डिपार्टमेंट। परसेप्शन के माने है व्यू पॉइंट, नजरिया जो हमारा होता है चीजों के ताल्लुक से। और we have a perception about ourselves, we have a perception about our relatives, our family members, etc. So point here is we have to develop a positive perception about everybody around us, everything around us। हर सिचुएशन, हर पर्सन, हर इवेंट, हर चीज में कुछ ना कुछ पॉजिटिव और कुछ ना कुछ नेगेटिव होता है। इट इज द नेचर ऑफ नो थिंग्स वी कैन से। आपके हाथ में फोन होगा अभी राइट नाउ,
आपके पास लैपटॉप होगा या कंप्यूटर होगा जिसके थ्रू आप ये सेशन अटेंड कर रहे हैं, तो इसमें पॉजिटिविटी भी है और नेगेटिविटी भी है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए, यू हैव टू फोकस ऑन व्हाट इज गुड इन इट। किसी भी सिचुएशन में, अभी ये सिचुएशन में भी पॉजिटिविटी है और नेगेटिविटी है, सो ए पर्सन हु इज हैविंग ए पॉजिटिव एटीट्यूड विल फोकस ऑन व्हाट इज गुड इन दिस सिचुएशन एंड ही विल नॉट फोकस ऑन व्हाट इज नॉट सो गुड इन दिस सिचुएशन। तो हमें परसेप्शन इस तरह का डेवलप करना चाहिए, किसी भी इंसान, किसी भी चीज, किसी भी सिचुएशन में हमको सिर्फ पॉजिटिव पर नजर रखनी चाहिए। तो ये हमने सीखा था फर्स्ट सेशन में, ठीक है। बेस्ड ऑन दैट आई हैव इवन एडवाइज्ड ऑल द पार्टिसिपेंट्स टू डू दिस एक्सरसाइज, प्रैक्टिस करके आने के लिए, क्योंकि ये ऐसी चीज है जो ओवरनाइट, ओवर टाइम जो है ओवरनाइट डेवलप नहीं होती। हमको जो है इसके लिए टाइम देना पड़ेगा। वी हैव टू कॉन्शियसली ट्रेन आवर ब्रेन। हमारा ब्रेन जो है वो ऑलरेडी, बिकॉज आई एम श्योर मोस्ट ऑफ द पीपल हु आर अटेंडिंग दिस सेशन आर अबव 20 years, तो 20 साल से जो है आपका ब्रेन जो है ट्रेन हो रहा है बाय द पीपल अराउंड यू, बाय द स्कूल्स, बाय पेरेंट्स, बाय रिलेटिव्स, बाय नेबर्स, ये सबसे जो है ट्रेन हो रहा है आपका ब्रेन। अब हम उसको चाह रहे हैं कि उसमें एक नई ट्रेनिंग ऐड कर दी जाए, दैट इज ट्रेनिंग ऑफ हाउ टू नो कीप थिंकिंग पॉजिटिव। उसका तरीका ये है कि आपको सिर्फ अच्छी चीजों को सोचते रहना चाहिए, जैसे बुरी थॉट है उसको आपको इग्नोर करना है, या जो है उसको उसकी तरफ तवज्जो नहीं देना है। इमीडिएटली यू शुड स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द पॉजिटिव थिंग। एनी क्वेश्चन ऑन दिस बिफोर वी मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट? ऑलराइट, सो नेक्स्ट पॉइंट था हमारा पॉजिटिव कम्युनिकेशन। द मोमेंट वी हैव पॉजिटिव थिंकिंग, हमको जो है हमारे कम्युनिकेशन को भी इम्प्रूव करना है, क्योंकि यू नो वर्ड्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन अवर लाइफ्स। अभी जो मैं आपके साथ कन्वर्सेशन में लगा हुआ हूँ, इट इज नथिंग बट ए कलेक्शन ऑफ वर्ड्स विच आई एम शेयरिंग विथ यू। आप भी जो कुछ मुझसे पूछेंगे, बोलेंगे, फीडबैक देंगे या किसी और को कुछ बोलेंगे, दैट इज नथिंग बट बंच ऑफ वर्ड्स। सो द बंच ऑफ वर्ड्स विच वी चूज, हम जो वर्ड्स चूज करते हैं, हमें चाहिए कि वो वर्ड्स भी पॉजिटिव हो, ठीक है। वर्ड्स का भी नो नेचर होता है, पॉजिटिव वर्ड, नेगेटिव वर्ड, वी कैन से say for example, the word positive is a positive one, the word negative is a negative one, and the word good is a positive one, the word bad is negative, yes is a positive word, no is negative, ठीक है। तो हमें जब हम कन्वर्सेशन करते हैं किसी से, तो वी शुड मेक एन एफर्ट टू यूज पॉजिटिव वर्ड्स इन आवर कन्वर्सेशन, ठीक है। नेगेटिव वर्ड अगर कोई आ गया तो उसको जो है आपको आहिस्ता आहिस्ता आदत करना है कि नेक्स्ट टाइम आप जब वो सिमिलर सेंटेंस बोलें तो उसकी जगह पर कोई पॉजिटिव वर्ड यूज करें। इसकी वजह यह है कि अगर आप पॉजिटिव वर्ड यूज करेंगे तो आप whenever we say a particular word, आप एक वर्ड बोलेंगे ना या वर्ड सुनेंगे आप, तो वो वर्ड का इफेक्ट आपकी थॉट पर होगा, आपकी इमेजिनेशन पर होगा। से फॉर एग्जाम्पल, if I just now say tiger, अभी the moment I said tiger, I'm sure most of you were able to visualize tiger। हालांकि स्क्रीन पे टाइगर नहीं है, आपके सामने टाइगर नहीं है, बट आपको टाइगर जो है आपकी इमेजिनेशन में आ गया। तो ए टाइगर, मेरे ख्याल से आपकी जो इमेजिनेशन में टाइगर आया है, दैट इज हैविंग यू नो ऑफ एन एज ऑफ मोर देन 10 years और समथिंग। बड़ा शेर ही आया ना, कब तो नहीं आया होगा किसी के ख्याल में। तो वो शेर जो पैदा होने के बाद इतने साल के बाद उतना बड़ा होगा, वो आपके जहन में, आपके इमेजिनेशन में, आपके व्यू में बिल्कुल एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आ गया टाइगर। नाउ आई से एलिफेंट, and the elephant has come in your thought imagination. You can see how powerful these words are. मैं जब ये बोल रहा था तो मेरे भी इमेजिनेशन में ये जो है एनिमल्स आए हैं। सो द मोमेंट वी अटर ए वर्ड, हम जैसे ही कोई लफ्ज बोलते हैं या हम जैसे ही कोई लफ्ज सुनते हैं किसी से, हमारा माइंड, हमारा जो है माइंड इमेजिनेशन जो है हमारा, वो उसे क्रिएट करता है। तो आप इमेजिन कीजिए, आप अगर ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव वर्ड्स बोलेंगे तो आपका माइंड भी जो है पॉजिटिविटी उससे फिच करेगा, इट विल टेक अ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फ्रॉम दोज वर्ड्स। अगर आप नेगेटिव वर्ड्स बोलेंगे तो आपके माइंड जो है, आपका ब्रेन जो है, वो नेगेटिव एनर्जी उससे फिच करेगा, और एज ए रिजल्ट वी टेंड टू बिकम ए पॉजिटिव पर्सन और नेगेटिव पर्सन। सो हमें जो है क्या करना चाहिए, हमें पॉजिटिव वर्ड्स ही यूज करना चाहिए जब हम कम्युनिकेट करते हों। नेगेटिव वर्ड्स शुड बी यूज ओनली व्हेन इट इज एन इमरजेंसी, ठीक है। जैसे कि कोई इमीडिएटली आपको कोई काम लेना है, कोई काम करना है, अगर नहीं करेंगे तो इट इज गोइंग टू कॉज अ लॉस, ओनली देन यू आर रिकमेंडेड टू यूज नेगेटिव वर्ड्स।
अदरवाइज गो थ्रू ओनली पॉजिटिव वर्ड्स, सिर्फ पॉजिटिव वर्ड्स ही सोचते बोलते रहिएगा, कम्युनिकेट करिए। अच्छा, अब when you say positive words, it's not only about positive words but the way you say them, आपके बोलने का जो अंदाज है वो भी जो है पॉजिटिव होना चाहिए। तभी जो है आप अपने ब्रेन को पॉजिटिव ट्रेन कर सकते हैं। और जो है पॉजिटिवली जब आप अपने ब्रेन को ट्रेन करेंगे तो उसके बाद के आने वाले जो चीजें हैं हम डिस्कस करेंगे आगे इन द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द सेशन, वो भी जो है पॉजिटिव होंगे। ठीक है। सो नॉट ओनली द वर्ड्स यू चूज, आप जो अल्फाज यूज कर रहे हैं सिर्फ वो ही नहीं, बल्कि आपका जो अंदाज है बात करने का वो भी जो है पॉजिटिव होना चाहिए। ओके, ये भी कैसा करेंगे हम, जैसा मैं बताया आपको थिंकिंग के बारे में। रिमेंबर, पॉजिटिव कम्युनिकेशन आल्सो रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस एंड कंसिस्टेंसी। मैं बार बार ये बोलता हूं कि हम एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं जिसमें थोड़ी नेगेटिविटी है, बहुत सारी नेगेटिविटी है, लोग नेगेटिव बातें करते हैं। ये जो है मैं इसलिए बताता हूं ताकि हम मोटिवेट हों ये चीजों को प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है। डेफिनेटली देयर इज पॉजिटिविटी आल्सो इन द एटमॉस्फेयर, बहुत सारे पॉजिटिव लोग हैं, अभी इस सेशन में भी जो है पॉजिटिव लोग मौजूद हैं। आप इसी वजह से ही जो है इसमें हैं क्योंकि आप पॉजिटिव हैं। ठीक है। तो सोसाइटी में भी पॉजिटिविटी है, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें वी हैव टू ओनली कनेक्ट टू दोज पॉजिटिव थिंग्स एंड पॉजिटिव वर्ड्स व्हिच वुड अगेन मेक अस मोर पॉजिटिव। ठीक है। So till here we have done in the previous sessions positive thinking और positive communication जो है हम करे हैं। इसमें एक लास्ट पॉइंट बोलकर हम अगले पॉइंट पे जाएंगे। उसके लाइक आप जो सोच रहे हैं वो आप, मैं बताया कि कुछ थॉट्स वॉलंटरी आते हैं, आपके हाथ में नहीं है, तो आपको पॉजिटिव थॉट है कैरी ऑन कीजिए, नेगेटिव है तो उसको छोड़ दीजिए। दूसरी बात, पॉजिटिव कम्युनिकेशन में हम बात करते हैं, हम बोले कि जो है आप जब बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव बात ही करिएगा और पॉजिटिव अंदाज में बात करिए। दिस इज व्हाट वी हैव सेड। However, you do not have control over what people say to you. लोग आपको क्या बोलेंगे इसमें आपका कंट्रोल कोई नहीं। तो आप अब उस वक्त क्या करेंगे, what you should do, तो उस वक्त पर भी जो है आपके हाथ में है। You have this capacity to let go of negative things. ठीक है। लोग आपसे नेगेटिव बात कर सकते हैं, people may say negative things to you, तो हमें क्या करना चाहिए, as a positive thinker, as a person with positive attitude, we should let go of the negative words which people have spoken to us. उसे हमें इग्नोर करना है, उसे हमें छोड़ना है, उस पर फोकस नहीं करना। अनफॉर्चुनेटली होता यह है कि हम में से कुछ लोग नेगेटिव वर्ड कभी कोई सुनते हैं तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा तवज्जो देते, बहुत ज्यादा फोकस करते, बहुत ज्यादा उससे हर्ट हो जाते। ठीक है। हर्ट होने के बाद बार बार उससे हर्ट होते रहते हैं। आप इमेजिन कीजिए आपके हाथ पर चोट लगी है, इफ यू आर हर्ट ऑन योर हैंड, तो आप बार बार उस दर्द को अगर दबाएंगे तो कैसा महसूस करेंगे, डेफिनेटली यू आर गोइंग टू फील पेन आउट ऑफ दैट। तो जब लोग आपको कोई नेगेटिव वर्ड बोलते हैं, आप उसके बारे में सोचेंगे या किसी को सुनाएंगे, रिपीट करेंगे, या फिर आप खुद भी बोलेंगे, तो दिस विल कॉज अ लॉट ऑफ नेगेटिविटी टू यू इन टर्न। वो आपके अंदर नेगेटिविटी फर्दर डेवलप करती ही रहेगी। तो हमें क्या करना है, जब लोग हमसे कोई नेगेटिव बात कह दें करें तो हमें उसे इग्नोर करना है। वी शुड नॉट फोकस ऑन दैट, जस्ट लुक एट द वर्ड, ड्रॉप द आइडिया एंड थिंक व्हाट इज गुड इन दैट सिचुएशन। वो सिचुएशन में क्या अच्छा है। तो हम, क्योंकि हम लोगों के कम्युनिकेशन को कंट्रोल नहीं कर सकते, हम अपने अंदर जो फिल्टर है उसे क्लीन रख सकते हैं। वी कैन ओनली टेक इन पॉजिटिव वर्ड्स एंड अवॉइड नेगेटिव वर्ड्स फ्रॉम टचिंग आवर माइंड। इस इन दिस कॉन्टेक्स्ट लास्टली, nobody can hurt you, बहुत अच्छा कोटेशन है, I like it very much. Nobody can hurt you without your permission. आपकी इजाजत के बगैर कोई आपको तकलीफ नहीं पहुंचा सकता। कोई भी आपको नेगेटिव बात कर दे तो आपको उसी वक्त बुरा लगेगा जब आप उसका बुरा मानना चाहें। तो अगर आप उस बात का बुरा नहीं मानना चाह रहे हैं, जस्ट लीव इट असाइड, फॉरगिव द पर्सन, फॉरगेट द इशू एंड मूव अहेड। विंस्टन चर्चिल का एक प्रोवर्ब बहुत अच्छा लगता है मुझे। ही सेड, यू कैन नॉट रीच योर डेस्टिनेशन इफ यू स्टार्ट throwing stones at every barking dog. हर भौंकने वाले कुत्ते पर आप पत्थर फेंकना शुरू कर दें तो आप अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। तो आपको क्या करना चाहिए, if a dog is barking, just move ahead, आगे बढ़िए। ठीक है। However, यहाँ पर एक राइडर मैं देना चाह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमारी लाइफ में बहुत सारे इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, वो कभी हमको हमारी बेहतरी के लिए, उनका तस्वुर ये होता है कि हमारी बेहतरी के लिए कुछ नेगेटिव वर्ड वो बोलते हैं। इसका मतलब हमें उन्हें ये कोटेशन में फिट नहीं करना चाहिए। ठीक है। दे आर डूइंग दैट विद अ गुड इंटेंशन, पॉजिटिव इंटेंशन, सो आप उस इंटेंशन पे फोकस कीजिएगा। लाइक आई सेड, इन ऑल सिचुएशंस, ऑल पीपल, ऑल थिंग्स, देयर इज ए पॉजिटिव एलिमेंट एंड ए नेगेटिव एलिमेंट। तो हमें पॉजिटिव एलिमेंट पर फोकस करना चाहिए, नेगेटिव एलिमेंट्स पे फोकस नहीं करना चाहिए। टिल हियर वी आर डन इन द प्रीवियस सेशंस बिकॉज द नंबर ऑफ
participants today are most of those who have not attended the previous sessions. मैं थोड़ा सा repeat किया इसको. Let us take 1 minute time. If you have anything to add or say about these two things, you can please. I hope the participants are enabled to unmute themselves. Abdul Rahim, I see your hand raised. Please unmute yourself and speak out. डॉक्टर लुकमान, मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा. फ्रॉम लास्ट वीक जो आपने बताया था कि कैसा whenever you have to forward some information, make sure कि you forward positive. बहुत necessary है तो ही negative forward करो, नहीं तो positive ही करो. The strange thing is पूरा हफ्ता ये चीज मेरे दिमाग में चल रही थी कि अल्हम्दुलिल्लाह जी. we need to think more positive. अपन सोचते नहीं usually, but negative thoughts रहते जाते हैं माइंड में, लेकिन जितना अपन पॉजिटिव के बारे में सोचेंगे तो ज्यादा पॉजिटिविटी की तरफ ही जाता है. बिल्कुल सही. So any positive action you took after this learning? So one positive action was that I used to, like, जो भी मेरे को information मिलती थी, थोड़ा verification के बाद I used to forward it, but now I'm making sure that it's mostly positive so that people जितना outlook है उन लोगों का ज़्यादा positive ही होगा. बिल्कुल सही. जज़ाकल्लाह खैर. Thank you for sharing that. तो बिल्कुल सही, आप अच्छी तरह से अच्छा याद दिलाए हैं कि जो है when we are forwarding some communication, कुछ हम pass on कर रहे हैं, ये this is the age of forwards. ठीक है, अब ये फॉरवर्ड की एज है. हमारे पास जो भी आ रहा है उसे फॉरवर्ड करना है. हम बगैर इस्तेमाल करके भी फॉरवर्ड कर दे रहे हैं, यानी कि बिफोर इवन विदाउट अप्लाइंग दैट इन आवर लाइव्स वी आर फॉरवर्डिंग थिंग्स. तो वी हैव टू बी केयरफुल दैट वी आर फॉरवर्डिंग ओनली थिंग्स व्हिच आर पॉजिटिव, व्हिच मे हैव इंशाल्लाह अ पॉजिटिव आउटकम. ठीक है, तो लेट्स मूव अहेड. आफ्टर पॉजिटिव कम्युनिकेशन, टुडे इन टुडेस सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एक्शंस. ठीक है, पॉजिटिव एक्शंस की हम बात करेंगे. तो what is action? First of all, दो किस्म की चीजें हैं. एक है एक्शन, दूसरी है इनएक्शन. ठीक है, सो डूइंग एनी काइंड ऑफ एक्शन इज पॉजिटिव फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, क्या कर रहे हैं आप वो नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये सेकंड स्टोरी है. ठीक है, एट सेकंड लेवल वी विल वेरीफाई दैट. डूइंग समथिंग इज पॉजिटिव, नॉट डूइंग समथिंग इज नेगेटिव नो इन नेचर. So the first thing is we have to be always in a mode of doing. ठीक है, अनफॉर्चुनेटली फिर हम अगर नेगेटिव साइड पर व्यू डालेंगे, नजर डालेंगे, तो इनएक्शन हैज बिकम ए काइंड ऑफ डिसीज इन द सोसाइटी. बहुत सारे लोग जो है कुछ नहीं करते, बेकार रहते हैं, टाइम पास करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं. इनफैक्ट द टाइम, वर्ड पता नहीं कहां से आएगा, द टाइम इज फेलिंग एक्चुअली, दे आर नॉट पासिंग द टाइम. सो कमिंग बैक टू दैट, मेनी पीपल जस्ट स्पेंड टाइम लाइक दैट, in sleep, in casual ordinary useless talk, or playing games on mobile phone, watching sundry videos, forwarding stuff which is not useful, and watching same video number of times. People waste their time in these things. So taking action, when we say ये भी एक किस्म का एक्शन है जब वो कर रहे हैं. Inaction, where you are just lying idle, sleeping or doing nothing. Now when it comes to doing things, फिर दो किस्म की चीजें हो गई, पॉजिटिव एक्शन एंड नेगेटिव एक्शन. नेगेटिव एक्शन इज दैट थिंग व्हिच इज नॉट कॉजिंग एनी बेनिफिट, एनी एडवांटेज टू यू, आइदर इन द प्रेजेंट और इन द फ्यूचर. आने वाले टाइम में या अब जो है आपको कोई फायदा नहीं पहुंचाने वाली जो चीज है, वो आपका वो एक्शन है जो नेगेटिव है. पॉजिटिव एक्शन वो चीज है जो आपको या तो अब जो है फायदा पहुंचाएगा या आगे फायदा पहुंचाएगा. मैं जब ये बोल रहा हूँ कि आपको अब फायदा या आगे फायदा, आपसे मुराद इट इज नॉट बीइंग सेल्फिश. ठीक है, खुद के लिए फायदे की हम बात नहीं कर रहे हैं. व्हेन यू से फायदा, बेनिफिट कैन बी फॉर यू, benefit can be for others also. If you are passing on the benefit to other, definitely the benefit is coming back to you. The God Almighty has promised that अगर आप किसी के साथ बेहतरी करेंगे तो बेहतरी आपकी तरफ लौट के आएगी, number of ways. ठीक है, so any action which is causing any positivity, any good return, advantage, benefit for others, or any action which is giving you some benefit or return or advantage, that is a positive action. ठीक है,
नाउ इसको थोड़ा सा हम रोकेंगे एक सेकंड के लिए. लेट अस पॉज द कन्वर्सेशन ऑन एक्शन. लेट अस कम टू द टॉपिक ऑफ गोल, मकसद. what goal should we have, or what goal do we have? The first question is whether we have a goal in the first place or not. क्या हमारे पास कोई गोल है, मकसद है या नहीं है? A goalless life, a aimless life is equal to the life of an animal. ठीक है, because an animal also doesn't have an aim. He leads an aimless life. तो हमें हमारी जिंदगियों में सबसे पहले एक एम बनाना चाहिए, हमारा एक मकसद होना चाहिए. ठीक है, एक गोल होना चाहिए. The question is, what kind of goal shall it be? People make different kinds of goal. Some people make a goal which is for themselves, like I want to become a businessman, ABCDE, or I want to do this, I want to enjoy life like that, I want to become super rich like that. एक लोग होते हैं जो इस किस्म का जो है गोल बनाते हैं, जो उनके लिए होता है. दूसरा, people also make goals like I want to set up an institution, I want to set up an hospital, I want to contribute this thing to the society. मैं ये करना चाहता हूँ, मैं ये create करना चाह रहा हूँ, I want to develop this. So ये develop create किसके लिए? This is for the generations to come, आगे आने वाले लोगों के लिए या दूसरे लोगों के लिए, खुद से हटकर दूसरे लोगों के लिए. तो गोल जो है होना चाहिए. Best is to have a goal which is having a element of contribution. Like I want to set up something which is going to benefit number of people. आप देखिए what kind of attitude some people in the West have. When I say this particular thing, that is because these things are coming more in conversation. ये ज्यादा गुफ्तगू में आ रहे हैं. हालांकि इस तरह के ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स जो है ईस्ट में भी हैं, इंडिया में भी हैं. हर सोसाइटी, हर कम्युनिटी में लोग गोल्स बनाते हैं. लेकिन आई हैव रेड सम गोल्स ऑफ सम पीपल वेयर पीपल से दैट आई वांट टू मेक द वर्ल्ड ए बेटर प्लेस टू लिव. मैं दुनिया को एक बेहतर जगह बनाना चाहता हूँ जीने के लिए. ठीक है, दुनिया एक अच्छी जगह है जिंदा रहने के लिए, तो वो बनाना चाहते हैं और उसे फर्दर इम्प्रोवाइज करना चाह रहे हैं. तो क्या हम वो काम कर रहे हैं? आर वी ऑल्सो डूइंग दैट इज द बिग क्वेश्चन. ठीक है, अगर नहीं तो इट्स नॉट गुड. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू सेट ए गोल व्हिच इज गोइंग टू कॉज सम बेनिफिट टू द वर्ल्ड. इट हैज टू इम्प्रोवाइज द वर्ल्ड. हम जितना भी ले रहे हैं ना इनटेक, फॉर एग्जाम्पल आप नाश्ता किए हैं, इवेल्युएट करिए नाश्ते की जो है क्या वर्थ होगी. मे बी द अगर आप बाहर से किए हैं नाश्ता, लेट अस जस्ट throwing a vague example, maybe you had a डोसा of 30 rupees, let us say. So 30 रुपए का डोसा आप खाए हैं, उसके बाद 3 घंटे तक आप कुछ नहीं खा रहे हैं. तो क्या आप वो अगले 3 घंटे में 30 रुपए की वैल्यू क्रिएट किए हैं या नहीं किए हैं? If you have not created a value of 30 rupees in these 3 hours, then it means you have wasted the dosha which you have eaten. ठीक है, तो थोड़ा सा हम एग्जाम्पशन ले सकते हैं. एक दिन का डोसा छोड़ दीजिए, आप 4 दिन से जो खाना खाए हैं उतने की वर्थ आप क्रिएट कर रहे हैं या नहीं. खाना एक चीज है, यू आर ब्रीथिंग ए लॉट ऑफ ऑक्सीजन एंड नाउ वी नो हाउ मच व्हाट इज द वर्थ ऑफ ऑक्सीजन. ऑक्सीजन की वर्थ क्या है हमें पता चला जब हम ये कोरोना गुड नहीं दे रहे हैं. तो देन वी आर नॉट एन एसेट टू द सोसाइटी बट वी आर ए लायबिलिटी टू द सोसाइटी. हम समाज के लिए एक जो है बोझ हैं, हम एक बर्डन है और हम एक लायबिलिटी है. तो हमें चाहिए कि हम जितना ले रहे हैं उससे ज्यादा दें. इस तरह का कोई गोल हम सेट करें. ठीक है, नाउ एक तो ये कैटेगरी हो गई. दूसरा, अगर आप ऐसा गोल नहीं सेट कर सकते, नहीं करना चाह रहे हैं, XYZ थिंग, ठीक है, लीव इट असाइड, नो प्रॉब्लम. यू कैन एटलीस्ट सेट ए गोल फॉर योरसेल्फ. कम से कम अपनी जिंदगी के लिए गोल सेट कर ले. आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू दैट, आई वांट टू अचीव दिस, आई वांट टू फुलफिल दिस, एटसेट्रा. ये भी बेहतर है. क्यों? क्योंकि जब आप वो फुलफिल अपना गोल कर रहे हैं, उससे बहुत सारे लोग in the process benefit होंगे ही होंगे. If you say I want to run a business and become a rich man, very good. When you run a business, you are going to hire some people. आपके बिजनेस में 15 लोग एम्प्लॉय होंगे, तो their home is running because of your business and you are serving some customers. तो आपके कस्टमर आपसे बेनिफिट होंगे. All these things are happening because you are trying to achieve your goal. ठीक है, even this kind of people, those who set a goal for themselves, they also are an asset to the society, we can say. तो अब ये हो गई गोल सेटिंग की बात. तीसरी कैटेगरी के वो लोग हैं जो बिल्कुल कोई गोल सेट नहीं करते. ठीक है, अल्लामा इकबाल का एक शेर मुझे याद आ रहा है यहाँ पर. आई होप सम ऑफ यू विल डेफिनेटली अप्रिशिएट दैट. अल्लामा इकबाल सेड, आई तायर लाहौती. अल्लामा इकबाल वाज वेरी obsessed, or in a way he would like birds a lot. और उसमें भी जो है बाज जो बर्ड है ना, क्या कहते हैं उसे, शाहीन.
उसकी फैल्कन, वो अल्लामा इकबाल की फेवरेट बर्ड थी. तो he has said many couplets, many ashar, in the context of Shaheen or Baz. So Tair Lahuti, he is referring to again a high flying falcon, and he says ऐ तायर लाहौती उस रिस्क से मौत अच्छी जिस रिस्क से आती है परवाज में कोताही. So any risk which we are consuming and that is making us lazy, lethargic, pessimistic, इससे तो मर जाना अच्छा है. He is not recommending suicide, but he is saying that death is better than that. ठीक है. अब रिस्क क्या है? रिस्क सिर्फ खाना नहीं है. रिस्क हमारे साथ जो भी हो रहा है, अल्लाह ताला की जो भी देन है, हमें जो मिल रहा है वो सब रिस्क है. ठीक है. जो नॉलेज हमें मिल रही है, ऐसी लर्निंग अगर हमारे को मिल रही है जो लर्निंग की वजह से हम लेथार्जिक हो जा रहे हैं, पेसिमिस्टिक हो जा रहे हैं, या जो है हम लेजी हो जा रहे हैं, तो उस लर्निंग से अच्छा तो मर जाना है. हमारे ऐसे रिलेशंस हैं, हमारे ऐसे फ्रेंड सर्किल हैं जिसकी वजह से हम लेजी हो जा रहे हैं, हम कुछ अचीव नहीं कर पा रहे हैं, हमारी परवाज जो है कम हो गई ऐसे दोस्ती की वजह से. सो ऐसी दोस्ती से मर जाना अच्छा है, according to the philosophy of Allama Iqbal. So risk is all these things surrounding us which are benefiting us in one way or the other, or through which we take some or the other satisfaction. खाना है, हमारे ताल्लुकात हैं, हमें जो वक्त मिलता है वो भी हमारा रिस्क है. हम जो पैसा कमाते हैं, हमें जो सहूलतें मिल रही हैं, ये भी हमारा एक रिस्क है. सेहत हमारा एक रिस्क है, हमारे फ्रेंड सर्किल नेटवर्क हमारा एक रिस्क है. तो हमें उस रिस्क से परवाज मिलना ही चाहिए, ना कि जवाल. ठीक है. नाउ कमिंग टू द पॉइंट. तो गोल हम ऐसा सेट करें जो कंट्रीब्यूटिंग इन नेचर हो. सेकेंडली गोल ऐसा सेट करें जो एटलीस्ट खुद को अचीवमेंट की तरफ लेकर जाए, क्योंकि इससे लोग बेनिफिट करेंगे. थर्ड इज वही कैटेगरी जो कुछ नहीं करते. तो नाउ कमिंग टू द पॉइंट ऑफ पॉजिटिव एक्शन. तो आपने, लेट अस अज्यूम दैट यू हैव सेट अ गोल फॉर योरसेल्फ. ठीक है. आई गिव 15 सेकंड्स टाइम. थोड़ा सा आपके पास अगर पेन है तो लिख लीजिए कि व्हाट डू यू वांट टू डू जस्ट फॉर द सेक ऑफ दिस एक्टिविटी. 15 सेकंड टाइम. और टाइप इन योर मोबाइल फोन इफ यू कैन. Okay, let us consider that you have written it already. So positive action क्या चीज है? अब याद कीजिए, अगेन 1 minute ब्रेक फॉर यू. याद कीजिए कि पिछले एक दिन में 24 आवर्स में आपने क्या किया है. रिमेंबर, I am assuming that you have already written a goal for yourself. May I just see by raise of hand how many of you have thought about your goal? अभी मैं गोल की बात कर रहा हूँ, तो कितने लोगों ने अपने गोल के बारे में सोच लिया है एटलीस्ट, or written somewhere? 2 hands only I see. I request others also to do that, please. At least write by your finger on the table which is in front of you. Write somewhere. All right. So अभी क्या करिए आप, पिछले 24 घंटे में आपने जो काम किया है, जो कुछ भी काम किया हो, इंक्लूडिंग स्लीपिंग एंड ईटिंग, ठीक है, जो कुछ भी काम किया हो उसकी तरफ नजर डालिए. जस्ट थिंक अबाउट ऑल दीज एक्शंस व्हिच यू हैव डन इन द पास्ट 24 आवर्स. जस्ट थिंक अबाउट इट. 1 minute टाइम. एक बार रिपीट करेंगे. The thing was, just set your goal first. अपना गोल सोच लीजिए. अगर आप सोच चुके हैं तो पिछले 24 घंटे में आपने गोल को बाजू रखिए फिलहाल. ठीक है, forget about the goal as of now. ये सोचिए कि पिछले 24 घंटों में आपने क्या क्या एक्टिविटी की है. What all you have done, including sleeping and eating. जरा उस पे तवज्जो ले जाइए. Okay. Half minute is already over. In fact, 40 seconds. All right, so we are done with 1 minute. Now I'm sure you have thought what kind of things you have done in the past one day. So अब ये जो चीजें आपने की होंगी, like sleeping, eating is aside, offering namaz, and maybe reading a book, maybe watching television, maybe reading news, maybe playing games on mobile, maybe being on social media, sharing things. All these things you might have done. ठीक है. तो अब आपको ये देखना है कि ये जो 10-15 things which you have done in the past 24 hours,
how many of these 10-15 things are taking you at least one step close to your goal? At least one step close to your goal. And how many things out of these 10-15 things which you have done is taking you at least one step away from your goal? आपके मकसद से एक कदम पीछे ले जाने वाला कौन सा इसमें जो है काम है, एक्शन है? Okay, so let us assume, let us consider, if you have done 3 things which are taking you close to the goal, one step, at least one step close to the goal. These 3 things are positive actions. Okay, and if you have done some 3 things which are taking you away from the goal, at least one step or more, then these 3 things are negative actions. Okay, so from the things we do, हम जो काम करते हैं, जो actions हम लेते हैं अपनी लाइफ में, उन actions में से ऐसे actions जो हमें अपने मकसद की तरफ लेकर जा रहे हैं, at least one step close to that, these actions are or can be classified as positive actions, and those actions which are taking you away from whatever goal you have set for yourself is or are negative actions. ठीक है? In case you have not set a goal for yourself, the first positive action for you should be, after this session, is setting a goal. ये आपका जो है positive action होना चाहिए. ठीक है? Setting a goal. उसके बाद फिर आप लिस्ट कीजिए कि आपके एक्टिविटीज क्या हैं, आपके हॉबीज, हैबिट्स क्या हैं, रूटीन क्या है आपका. वो लिस्ट करने के बाद उसमें से उन आइटम्स को निकाल दीजिए जो आपको आपके गोल से दूर लेकर जा रहे हैं. ठीक है? If your goal is to score 90% in some examination, and if you are playing game on mobile phone, this action is going to take you away from your goal. And you know, हमारा सबकॉन्शियस कभी-कभी जो है हमको आराम में रखने के लिए, सबकॉन्शियस, इंसान का जो सबकॉन्शियस होता है वो बहुत सेल्फिश होता है. This wants to give you a lot of relaxation and fun, entertainment, pleasure देना चाहता है आपको. And studying is definitely painful for many people. कुछ लोगों को मजा भी आता है पढ़ने में, but बहुत सारे लोगों को उसमें बहुत तकलीफ होती है. तो the subconscious mind will tell, come on, how much will you study? You already studied for 2 hours now. Let's take some break and play some game on mobile phone. Let's watch a couple of YouTube videos. Let's watch maybe कोई notification आ गया, आप जो सब्सक्राइब कर रहे हैं किसी कार्टून को YouTube चैनल पर, अगर उसका कोई जो है वीडियो आ गया है तो you get a notification and then your brain will tell you, let us relax for a while and go for it. तो ये ट्रिक करता है आपका ब्रेन आपको, trying to move you from your positive actions. Okay, I do not mean that you should not relax or do things which are coming in the form of a break. Definitely you should do, but how much do we need? कितनी जरूरत है उस चीज की? ऐसा ना हो कि जो है आप पॉजिटिव एक्शन बहुत छोटा कर रहे हो और उसका ब्रेक जो है बड़ा हो रहा हो. And if you look at the kind of lifestyle or life schedule of the day which is given to Muslims, नमाजों के जो टाइमिंग है, औकात हैं, these 5 prayers in a day, these are definite positive actions. ठीक है? सबसे पहले जब हम फजर पढ़ते हैं, फजर के लिए जब हम उठते हैं, that is the first positive action which we can do. If somebody is waking up before that, mashallah, welcome. लेकिन at last अगर हम फजर में भी उठ रहे हैं तो that is the first positive action which anybody would do, waking up so early in the day, waking before the sun rises. ठीक है? तो उठ रहे हैं, पॉजिटिव एक्शन है. उसके बाद आप जब आ जाएंगे घर वापस तो you would be fresh enough. You can do so many things. You can recite Quran. You can read some books. You can do some pending work which you had. You can reply to some of your messages. You can do all that stuff. You have a breakfast. You go to work. Go to college. Go to बोलते I'm talking about positive times of non-lockdown. You are getting in your work, online, offline, जो भी काम है आपके कर रहे हैं आप. Then the God says, okay, come on, you have been working hard since morning, so you take a break now. So the Zuhr comes as a positive action in between and takes you away from your work. It asks you to wash your hands, wash your face, be fresh. ठीक है? And then go and relax for a while. ठीक है? नमाज जब आप पढ़ते हैं, a lot of breathing happens. Breathing exercise के benefits तो जो है हमको साइंस ऑलरेडी बता रही है अभी. So you are unknowingly indulging in a lot of breathing exercise when you are offering namaz. You are unknowingly getting into so many stretches which are very helpful to your health and body. तो ये जोहर का ब्रेक है. फिर then you offer zohar, again you get back to work. Then again you work for a couple of hours. Then the God Almighty says, take a break now. That's a positive action. Go for asr, and you offer asr,
again a break, you get fresh, and then time to go back home. So you are packing up packing up your stuff and then getting into the household stuff. तो घर की तरफ आप आ रहे हैं, तो मगरिब is something which comes as a point of return. वहां पर आप जो है घर पे आ चुके हैं, you are again offering prayer, a positive action. Then you are staying at home having your dinner, again Isha prayer of Isha, and then that is the last positive action of the day, and after that you are going to sleep so that you can wake up early in the next day. So this entire schedule of the day is packed with so many positive breaks. ठीक है, ये this is coming as a good break from our daily schedule, daily work. ठीक है, तो हम इसको भी कर सकते हैं. On this is how it is. And if somebody is saying that no, playing games and doing that stuff is also useful, then without that also life was going on. People were active, healthy, positive. So we can also be so. ये चीजें बाद में आई हैं, so इसको जो है हम अपनी जिंदगी में मस्ट नहीं बनाना चाहिए. And unfortunately, the kind of things which we are involving in the name of entertainment or in the name of refreshing ourselves are in fact very problematic. ठीक है, नुकसानदेह हैं वो. They're hazardous. Like children these days, adolescents especially, are playing games which involve a lot of violence. आप इमेजिन कीजिए कि आप एक गेम खेल रहे हैं जिसमें आप किसी सामने वाले शख्स को मार रहे हैं, and you are celebrating his death. ठीक है, and you are teaming up with your friends virtually and then killing people virtually and celebrating that one. ठीक है, you are feeling happy. So I was listening to Sheikh Hamza Yusuf, and he said it is not the it is not the characteristic of a healthy brain, healthy mind to feel happy when you put somebody into pain. It is definitely a sick brain. So अगर हमको इसमें pleasure आ रहा है, तो there is something wrong with us. In fact, game जो चीज है ना, एक positive action है. Playing something is a positive action because you are refreshing, rejuvenating yourself. अगर ये positive action में अगर आप लोगों को मार रहे हैं और उससे जो है मजा ले रहे हैं, तो there is something really wrong with us. ठीक है, तो हम जो एंटरटेनमेंट यूज करते हैं फॉर ब्रेक फ्रॉम आवर शेड्यूल, उसे भी हमें देखना चाहिए कि क्या ये पॉजिटिव एक्शन है या नेगेटिव एक्शन है. ठीक है, तो लेट्स बी कॉशियस एंड केयरफुल अबाउट दैट. तो ये हो गया पॉजिटिव एक्शन को लेकर. एनी थॉट्स ऑन दिस, एनी क्वेश्चंस बिफोर वी गेट इनटू द लास्ट पार्ट ऑफ द सेशन. हमारा जैसा कि मैं बताया आपको, ये सेशन हम कर रहे हैं सो दैट वी रिमेन पॉजिटिव ड्यूरिंग द कोविड टाइम्स. ठीक है, सो एनी पॉइंट्स फ्रॉम एनीबॉडी हियर to ask or tell? Dr. Lukman, I had one question. Yes, जी. तो जैसा आपने बोला कि गोल सेट करना चाहिए, हम गोल सेट करते हैं, फिर कुछ टाइम तक 1, 2, 3 दिन उसके ऊपर काम करते हैं diligently, and then the past negativity, the negative experience थे, वो सब वापस आते हैं और फिर you eventually leave it. So is there, I mean, how to overcome that? बहुत सही, बहुत अच्छा क्वेश्चन है विखार साहब. देखिए, अगर गोल बनाकर उसे फॉलो करना बहुत आसान हो जाए तो competition बहुत बढ़ जाए, and it is very easy for everybody. It will not be differentiating between real smart worker, hard worker, and somebody who is a part-time hard worker. The very nature of goal and the path towards achieving the goal is difficult enough. That is in order to differentiate between the really serious and the temporarily serious. ठीक है, इस तरह से हम philosophically इसको समझ सकते हैं. तो हमें चाहिए कि हम कंटिन्यूअसली या कंसिस्टेंटली जो है पॉजिटिव रहे, कंसिस्टेंटली सीरियस रहे. नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू बी दैट. ठीक है, दैट इज व्हाट योर क्वेश्चन इज, आई अंडरस्टैंड. तो देखिए, उसके लिए क्या है नतीजा, हम कहीं अगर लिख ले, रिसर्च ये बताती है, नंबर ऑफ रिसर्च यू कैन जस्ट गूगल एंड फाइंड आउट आल्सो. रिसर्च ये बताती है कि जो लोग अपना गोल लिख लेते हैं, they are better than those who just have their goal in mind. CGC 123 ये कौन है? थोड़ा प्लीज म्यूट योरसेल्फ. आई हैव बीन म्यूटिंग यू. आपके तरफ से डिस्टरबेंस आ रहा है. CGC 123. All right. Where are we? All right. So studies show that setting a goal, writing a goal is beneficial than just having a goal in mind. Having a goal in mind is better than not having a goal in mind.
just a minute, I'm removing CGC 123 for causing disturbance. ठीक है, तो so लिख लीजिएगा विखार साहब. My suggestion to you is you can write your goal. Maybe you have already written it somewhere. So the solution then is to keep revisiting it. आपको उस गोल की तरफ रिविजिट करते रहना चाहिए बार बार. Make it as a part of your schedule itself. ये आपका शेड्यूल का हिस्सा हो कि जो है आप उसकी तरफ रिविजिट कर रहे हैं. And last thing on that is difficulties in achieving a goal should in fact be a motivator. ठीक है, हम अपना ऐसा कर सकते हैं. देखिए, we can have a vision. हम अपना नजर जो है हमारी गोल पर रखे हों, तो बीच में जो डिफिकल्टीज आएंगी, we have to be prepared. ये तो आएंगी ही आएंगी. ठीक है, and I have to overcome that. We have to consider the difficulty as a part of the path. ये रास्ते का हिस्सा है ये. ठीक है, आप मंजिल की तरफ जा रहे हैं, रास्ते में if dogs come, stray dogs आ गए हैं, भौंक रहे हैं, आपकी तरफ लपक रहे हैं, अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं. What do? You run faster. You take a turn. You just skid away. You do something and you just move towards your goal. हमको इस तरह से इमेजिन करना है. आपका जो गोल है उसको आप मंजिल समझिए, और जो रास्ते में डिफिकल्टीज आ रहे हैं, जो डाइवर्शंस आ रहे हैं, डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं, उसे आप कंसीडर दैट एज स्ट्रे डॉग्स और समथिंग लाइक दैट. And we have to be focused. So and the last thing again, I'm repeating that the very nature of the difficult goal and the path to goal being difficult is to segregate between the really serious and the temporarily serious. So let's and by the way, it is possible. If somebody has achieved their goal by following this route, it is possible for us also. Okay, anybody else? Anybody else? Any question, any thought before we close with what positive actions we can take during the pandemic and lockdown? All right. तो देखिए, अभी पैंडेमिक चल रहा है according to the government and media, or lockdown is there. All of us know and all of us are affected by that. Now this is something which is not in my control or your control. ये हमारे कंट्रोल से बाहर है. So what can we do about things which are not in our control? The thing is we have to accept it. We have to accept the reality. We find people, those who are cribbing about it. It is definitely very stressful, frustrating है ये situation. तो उनका cribbing करना भी जो है वो natural reaction है. उनको भी हम criticize नहीं कर सकते, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं है. ठीक है. The first thing we should do is to accept. The first positive action you can say about the lockdown story and the pandemic story and the corona story is to accept the story. ये है, चलो ठीक है, let us say it is there. Now what? अब क्या है? That's the second question. तो अब क्या है? Like I said, in every situation there is something good and something bad. Maybe in certain situations there is a lot bad and very little good. हो सकता है कि बहुत ज्यादा बुरा हो, बहुत ज्यादा बुरा, और बिल्कुल थोड़ा सा अच्छा हो. वैसे ही जैसे समंदर में मोती निकालने के लिए जब गोता मारता है गोताखोर, तो द समंदर, द सी इज वेरी बिग एंड द पर्ल्स आर समवेयर इन द बॉटम ऑफ द सी. दैट इज वेरी लिटिल, बिल्कुल बहुत माइन्यूट लेवल पर. ठीक है, तो फिर भी दैट इज देयर, इट इज प्रेजेंट एंड द पर्सन गेट्स इट ऑल्सो. तो ये सिचुएशन में भी देयर सीम्स टू बी अ लॉट बैड, बहुत ज्यादा बुरा है और बहुत कम अच्छा है. लेकिन हमारी खुशी, हमारा सेटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस इसी में है कि हम वो बहुत छोटा जो अच्छा है उसी पे फोकस करें. बिकॉज इफ वी डू नॉट डू दैट, दिस नेगेटिविटी, दिस बैड थिंग्स आर गोइंग टू ओवरटेक अस, दे आर गोइंग टू ओवरकम अस, हमारे ऊपर हावी हो जाएंगे वो. एंड दैट इज बैड फॉर अवर फ्यूचर, दैट इज बैड फॉर अवर कमिंग जनरेशंस. तो हमें इसमें जो अच्छा है उसी में जो है उसी के ऊपर फोकस करना चाहिए. वन थिंग बिफोर आई कम बैक टू दिस, अब तक जो हमारी जिंदगी गुजर रही थी, ये काफी जो है मुझे लग रहा है कि काफी पावरफुल रियलाइजेशन है व्हिच आई हैव रिसेंटली फेल्ट. अब तक जो हमारी जिंदगी गुजर रही थी, ये जिंदगी एक रूटीन लाइफ थी. इट वाज लाइक जस्ट इट्स अ ब्रेक फ्रॉम द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द वर्ल्ड. दुनिया जो चलती आ रही है ना दौर जमाने से, उसमें काफी लोग मुश्किलात उठाए हैं, हालात दुश्वार रहे, अच्छे भी हुए, बुरे भी हुए, सब हुए. हम जो दौर से गुजर रहे थे, इट वाज लाइक ए ब्रेक. वो एक ब्रेक की तरह था जिसमें कुछ नहीं हो रहा था. आई एम टॉकिंग अबाउट ए सिचुएशन लाइक 30-40 इयर्स में, जिसमें इंसिडेंट्स ऐसे वैसे हुए हैं जो हमारे लिए नामुनासिब थे. अच्छे पॉजिटिव इंसिडेंट भी हुए हैं, बट ओवरऑल इफ यू एनालाइज,
लाइफ वाज बीइंग नॉर्मल, ठीक है, स्टडीज चल रहे थे सबके, जॉब पे चल रहे थे लोग, पीपल वर गेटिंग मैरिड, पीपल वर हैविंग किड्स, सो ये सब चल रहा था, रूटीन था। अब जो आया है, दिस इज अ काइंड ऑफ यू नो बिग एक्सीडेंट और बिग इवेंट व्हिच हैज हैपेंड, एंड नाउ इज द रियल टेस्ट ऑफ आवर लाइव्स। ये हमारी जिंदगी का असल हकीकी जो है इम्तिहान है। हम जहां कहीं भी हों, एक बड़ा बिजनेसमैन है तो उसके लिए भी एक उसका इम्तिहान है, एक छोटा स्टूडेंट है उसके लिए भी एक इम्तिहान है, कोई टीचर है उनका भी इम्तिहान है, कोई दूसरा कोई प्रोफेशनल है उसका भी एक इम्तिहान है, कि वो अपनी कैपेसिटी में, अपने सर्किल में, अपनी जो है स्ट्रेंथ के साथ क्या करता है इन दिस सिचुएशन। सो वी आर इन द रियल सिचुएशन ऑफ बीइंग टेस्टेड नाउ। ये हमारा जो है टाइम ऑफ टेस्ट है, एंड वी हैव टू ओवरकम दैट बाय आवर पॉजिटिव एक्शंस। एंड सो बहुत कम जो इसमें पॉजिटिविटी है ये सिचुएशन में, इसमें हम क्या क्या देख सकते हैं, व्हाट डू वी लुक एट इट एंड व्हाट शैल वी लुक एट एंड व्हाट शैल वी डू। आई एम सॉरी। तो इसमें हम देख रहे हैं कि पीपल आर गेटिंग ए लॉट ऑफ टाइम दिस ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन एंड ऑल। टाइम अच्छे से मिल रहा है बहुत सारे लोगों को, और वो टाइम को जो है अच्छे से इस्तेमाल किया जा सकता है, लाइक मीटिंग रिलेटिव्स, staying in touch with them, meeting relatives. Again, you have to understand what I mean to say. Do not go by the literal words. And then reading books, full overcoming our weaknesses. हमारी जो कमजोरियां हैं, हमारी आदतों में जो कमजोरियां हैं, उसे हमें ओवरकम करने का ये बेहतरीन मौका है। We can improvise ourselves. हमारी स्किल को जो है हम शार्प कर सकते हैं इस दौरान। We can do so. Whatever incomplete tasks which were left because of time which we were unable to do, this is the right opportunity to do that. ठीक है, you can set your things right, find out which books you wanted to read and which you left as incomplete because of your busyness, and just start reading them, and that will definitely add value to that, so that tomorrow inshallah when again things become normal, and if they turn towards routine, so that your skills are well utilized there. ठीक है, prepare yourself, upgrade, we can upgrade ourselves, we can proper our habits. ठीक है, हम सुबह जल्दी उठना, रात में सोने की हैबिट को जो है रियलिटी बना सकते हैं। थैंकिंगली गवर्नमेंट इज फैसिलिटेटिंग दैट। रात में लॉकडाउन जो अभी, if at all they are freeing little more, if the curfew is or lockdown is only for night, well that's a welcome thing for many of us. We can be back home for good or bad, but then we can sleep on time and wake up on time. So these are the positive things we can do. And also make sure that your positive actions are having a positive outcome for others also. ठीक है, आपके फैमिली में जो है आपकी प्रेजेंस, it should add value to them also. It should contribute to their positivity. This is what we can do. And of course government and the WHO and the medical associations have not been left behind in doing do's and do nots of the lockdown and pandemic. वो तो आप follow करेंगे ही. Consider that also a positive action for your health and health of others. Then do these things. Any thoughts, any questions before we close today? Sami bhai, is it enabled for everybody to unmute themselves? Oh, yes. Yes, I can see. Okay. All right, thank you so much for being a part of this session. Inshallah ta'ala, next session we are going to talk about positive action के बाद क्या आता है, action के बाद आता है reaction. So let's have a talk on that. I see two people unmuting themselves. Any thoughts here? Muhammad Hassan sir, can I have your mail ID or phone number? Mail ID luqmanhussaini@gmail.com. Okay, thank you. Career Guidance Council, somebody unmuted. All right, so I think we can close. One question, please. Yes, please. Yes, please. How do we differentiate between like somebody is like some advice or something coming from outside? It's like from parents or maybe friends or something. How do we like differentiate between like being positive, or we have to ignore that? Maybe it is anybody else, not only parents or friends. It can be coming from outside. So how do we differentiate between like we have to concentrate, accept it or not? Accept it or ignore? हाँ देखिए, अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है। मैं हमेशा सोचता हूँ लोग जब एडवाइस मेरे सामने, जब कोई किसी को एडवाइस दे रहा और वो शख्स जब एडवाइस को रिएक्ट करता है, एट दैट टाइम आई थिंक दिस थिंग
not essentially when I am advising or I am taking advice. ठीक है, now coming back to the point. Usually हमारी सोसाइटी में एक ऐसा कल्चर डेवलप हो गया है, हम देखते हैं, I see this day in and day out because studying psychology helps you in improving your observation skills. आपका observation जो है बढ़ जाता है. तो I see when people are given advice, जब लोगों को advice दी जाती है, तो the first thing which comes out is resistance. ठीक है, वो उस एडवाइस को रेसिस्ट करते हैं. से इफ फॉर एग्जांपल इफ somebody is in some trade, कोई बिजनेस कर रहे हैं, when new person is coming and giving him an advice, that businessman thinks that he doesn't know and he is advising me something which I am not going to do, so he starts with a resistance. ठीक है, तो उसकी वजह से ये उसका नतीजा ये होता है कि उनकी एडवाइस में जो पॉजिटिव एलिमेंट्स थे, इंफॉर्मेशन थी, वो ये पर्सन जो है इससे चूक जाती है, he loses it. ठीक है, some people advise for the sake of advising. ठीक है, वो they advise things which they themselves do not do. They advise things which they are themselves not good at. ऐसी चीजें होती हैं हमारी सोसाइटी में, हम भी बहुत वक्त ऐसी बातें कर देते हैं, तो इट्स ओके. लेकिन as a receiver of advice, the first thing we should make sure that we are not resisting the advice. हम किसी एडवाइस को रेसिस्ट ना करें. Let the advice come. After the advice come, we can evaluate it neutrally and see whether this advice is going to benefit me in short and long run both or not. ठीक है, or the person is advising only for the sake of appearing to be compassionate, appearing to be helpful or appearing to be wiser than you. ये अलग factors हैं. ठीक है, let us not get into that. The fact of the matter is an advice has come to you, so look at the advice, and if that is going to benefit you, look at it neutrally. I am emphasizing on that point. हमें किसी भी bias को निकाल कर इस लोगों के advice को सुनना चाहिए. There is because when they advise, maybe that is an advice coming from the God Almighty through somebody. ठीक है, तो उसमें positive जो element है हम उसे use कर सकते हैं. Is my answer relevant to your question? Yeah, but yeah, still, or is there any gap somewhere? Like a practical example, any more practical example. So you want a practical example? Yeah. Okay, so let us say that if somebody is advising you to do a particular certification, let us say. ठीक है, तो अब हालांकि आप सोचे नहीं हैं उस बारे में या सोच के छोड़ दिए हैं, anything might have happened. Let us say I'm advising you to do a certification to improve your career or better your career. So if you are having some kind of negative opinion about me or some kind of not so positive opinion also, you may resist my advice and say हाँ ठीक है ओके बोल के आप जो है वो सुन तो रहे हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं करेंगे. My suggestion is eliminate your thought about me, take my word, evaluate that idea of certification and see if that is really going to benefit you. And if the answer is yes, go for that. Okay, can yeah. It's like if I'm following somebody or listen to his or her advices on a regular basis, so can we keep following that irrespective of the definitely if the advices are always proving to be positive, ठीक है, या mostly proving to be positive, ठीक है, हमें dependency कम करनी चाहिए. We have to be self thinker also, we have to be initiator too, but only for the sake of doing that we should not avoid advices. Even कुरान मजीद का एक आयत का मफहूम है, आप सुने होंगे. अल्लाह सुब्हानहू व तआला says that बेशक अक्लमंद लोग ही मशवरा कबूल करते हैं. Only intelligent people accept advice. So we have to be recipient of advice. It's good if we accept advices and follow if they are for our good. Yeah, sounds good. Jazakallah. Right, Jazakallah khair. I hope the questions are done. Thank you so much for being a part of the session. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Thank you, sir. Welcome. Wa alaikum assalam.